یہ صرف ایک شعر نہیں تھا، یہ اس تقدیر کا امتحان تھا جو فرید خان کو تاریخ بنانا چاہتی تھی۔ آج سے تم فرید خان نہیں، شیر خان ہو۔ شیروں سے لڑنے جتنی بہادری اور بادشاہوں کے درباروں کو پگنی کا ناچ نچا دینے جتنا دماغ یہ کسی عام شخص میں نہیں ہو سکتا۔ دوستو، اگر تاریخ سے تمام بادشاہ زادوں کے نام مٹا دیے جائیں اور اگر تخت وراثت میں نہ ملے، اگر طاقت صرف ذہانت، محنت اور حوصلے سے حاصل کرنی پڑے، تو کون سا انسان تاریخ بدل سکتا ہے؟ کس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ یہ سب کچھ کر سکے؟ یقیناً پھر تاریخ میں بہت تھوڑے انسان اتنی ہمت، طاقت اور مستقل مزاجی والے بچیں جو یہ سب کچھ کر سکیں۔ یہ کہانی کسی شہزادے کی نہیں، کسی عظیم سلطنت میں پیدا ہونے والے وارث کی نہیں، یہ کہانی ہے ایک ایسے نوجوان کی جسے نہ باپ کی قربت ملی نہ دربار کی حمایت، لیکن اس کے اندر ایسا یقین تھا جو سلطنتوں کو ہلا دیتا ہے۔ ایک وقت تھا جب وہ جنگل میں کھڑا ایک خونخوار شیر کے سامنے تنہا تھا، اور چند لمحوں بعد تاریخ نے اسے شیر کہنا شروع کر دیا، کیونکہ جنگل کا شیر بھی اس کے سامنے ہار گیا تھا۔ مگر اصل شیر وہ نہیں تھا جو جنگل میں مرا، اصل شیر وہ تھا جس نے اپنی تقدیر کو خود شکار بنایا۔ دربار اسے ملا نہیں تھا، اس نے اپنی صلاحیت سے لیا تھا۔ وہ صرف تلوار کا ماہر نہیں تھا، وہ نظام سوچتا تھا، وہ انصاف دیکھتا تھا، وہ سڑکیں، سکے اور قانون بناتا تھا۔ اور جب مغل تخت لرزا، جب دہلی کے دروازے کھلے، تو ایک چرواہے کا بیٹا تخت پر بیٹھا، نام تھا شیر شاہ سوری۔ یہ صرف اقتدار کی کہانی نہیں ہے دوستو، یہ خود کو بنانے، وقت کو بدلنے اور تاریخ پر نقش چھوڑنے کی ایک بے مثال داستان ہے۔ شیر شاہ سوری، جن کا اصل نام فرید خان تھا، بر صغیر کی تاریخ کے ان چند حکمرانوں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے مختصر عرصے میں نہ صرف سیاسی طاقت حاصل کی بلکہ ایک ایسا مضبوط اور منظم نظام قائم کیا جس کی بنیادیں صدیوں تک قائم رہیں۔ ان کی زندگی اس حقیقت کی گواہ ہے کہ غیر معمولی قیادت، علم، محنت اور نظم و ضبط کے ذریعے ایک عام پس منظر رکھنے والا شخص بھی تاریخ کا دھارا بدل سکتا ہے۔ فرید خان کی پیدائش 1472 میں سہسرام میں ہوئی، جو کہ موجودہ بھارت کی ریاست بہار میں ہے۔ وہ سور قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جو افغان نسل قبیلہ تھا۔ ان کے والد حسن خان سوری ایک معمولی درجے کے جاگیردار تھے۔ فرید خان کا بچپن آسائشوں سے خالی تھا اور والد سے تعلق بھی زیادہ خوشگوار نہ تھا، جس کی وجہ سے ان کی شخصیت میں خودداری، سخت محنت اور خود انحصاری جیسے اوصاف بہت جلد پیدا ہو گئے۔ یہی ابتدائی تجربات آگے چل کر ان کے مضبوط اور منصفانہ کردار کی بنیاد بنے۔ ان کے والد کی ایک سے زیادہ شادیاں تھیں اور شیر شاہ سوری کی سوتیلی ماں اس کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ جاگیر میں حصہ صرف اس کے اپنے بیٹوں کو ملے، اس لیے شیر شاہ کے اپنے والد کے ساتھ اچھے تعلقات نہ رہے۔ یہ باپ سے بغاوت نہیں تھی، یہ ناانصافی سے انکار تھا۔ تعلیم کے لیے فرید خان کو اس دور کے مشہور علمی مرکز جون پور بھیجا گیا، جہاں انہوں نے عربی، فارسی زبان، تاریخ، سیاست اور جنگی حکمت عملی کی تعلیم حاصل کی۔ جون پور اس زمانے میں علم و ادب کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا۔ یہاں حاصل کی گئی تعلیم نے ان کی سوچ کو وسعت دی اور انہیں صرف ایک جنگجو ہی نہیں بلکہ ایک مدبر، منتظم بھی بنایا۔ بعد میں ان کی اصلاحات اور انتظامی صلاحیتوں میں اسی تعلیم کی جھلک نمایاں طور پر نظر آتی رہی۔ فرید خان کو شیر خان کا لقب ایک غیر معمولی واقعے کے بعد ملا۔ روایت کے مطابق باپ کے گھر کو خیر آباد کہنے اور اپنی قسمت کو خود بنانے کے فیصلے کے بعد شیر خان بہار کے حکمران بہار خان لوہانی کے دربار میں پہنچا، جہاں اس نے اپنی تعلیم و تربیت اور صلاحیتوں کی وجہ سے جلد اپنا مقام بنا لیا اور بہار خان کے قریبی ساتھیوں میں شامل ہو گیا، اور بہار خان اس کو سفر، شکار اور فوجی مہمات میں
अपने साथ रखता। एक दफा बहार खान के साथ शिकार के दौरान एक खूनखार शेर ने अचानक हमला कर दिया। इस मौका पर फरीद खान ने अपनी जान की परवाह किए बगैर तने तनहा शेर को हलाक कर दिया। इस जुर्रत और बहादुरी पर बहार खान ने उन्हें शेर खान का लक़ब दिया। आज से तुम फरीद खान नहीं, शेर खान हो। ये वाकया उनकी जिंदगी का एक फैसला कुन मोड़ साबित हुआ और दरबार में उनकी हैसियत और मुस्तहकम हो गई, क्योंकि उन्होंने हुक्मरान की जान बचाई थी। वक्त के साथ साथ शेर खान ने बहार में इंतजामी और फौजी उमूर संभाल लिए और अपनी गैर मामूली जहानत और नज़्मो ज़ब्त के जरिए असल ताकत अपने हाथ में ले ली। फरीद खान, मुझे तुम पर भरोसा है। जाओ और हमारा झंडा बुलंद करो। हुक्म बादशाह सलामत, आपका हुक्म बजा लाया जाएगा। उन्होंने फौज को मुनज़्ज़म किया, सिपाहियों की तनख्वाहें मुकर्रर की और नज़्मो इंसाफ पर सख्ती से अमल करवाया। शेर खान ने ताकत हासिल करने के लिए महज साजिश या जोर का सहारा नहीं लिया, बल्कि एक मुअस्सर निजाम कायम किया, अपनी काबिलियत का सहारा लिया, जिसने उन्हें अवाम और फौज दोनों में मकबूल बना दिया। सिपाही वो नहीं जो सिर्फ तलवार उठाए, असल सिपाही वो है जो हुक्म, सब्र और मकसद के साथ लड़े। नज़्मो ज़ब्त तुम्हें फौज बनाता है और बहादुरी तुम्हें तारीख बना देती है। 1528 में बहार खान के इंतकाल के बाद उसका बेटा हाकिम बना, मगर वो एक काबिल हुक्मरान नहीं था और तब तक वैसे भी शेर शाह दरबार और अवाम में बहुत एतमाद और ताकत हासिल कर चुका था और हुकूमती मामलात का बहुत कंट्रोल उसके हाथ में था, जो कि उसने साजिशों के जरिए नहीं बल्कि अपनी फहम फरासत और काबिलियत से लिया था। मुगल बादशाह हुमायूं के साथ उनका टकराव तारीख का एक अहम बाब है। 1539 में बहार के मुकाम चूसा के करीब होने वाली जंग में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को सख्त शिकस्त दी और उसके बाद 1540 में कनौज की फैसला कुन जंग ने मुगल इक्तदार की बुनियादें हिला दी और हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। शेरशाह ने हुमायूं को फौजी मंसूबाबंदी, नफ्सियाती हिकमत अमली और मुकामी हमायत से शिकस्त दी, जबकि हुमायूं ने अपनी बद इंतजामी और खौफजदा सिपाहियों की वजह से शिकस्त खाई। इन फतूहात के बाद शेरशाह सूरी ने दिल्ली का तख्त संभाला और बदे सगीर के एक बड़े हिस्से पर अपनी हुक्मरानी कायम कर ली। शेरशाह सूरी का दौरे हुकूमत अगरचे 1540 से लेकर 1545 तक यानी कि सिर्फ 5 सालों पर मुश्तमिल था, मगर उन्हीं चंद बरसों में उन्होंने वो इस्लाहात नाफिज की जो तारीख में मिसाल बन गई। उन्होंने काबुल से लेकर बंगाल तक शाहराहों का जाल बिछा दिया, जिसमें मशहूर ग्रैंड ट्रंक रोड भी शामिल है। काबुल से पेशावर, वहां से फिर लाहौर, दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद, बनारस, पटना और फिर बंगाल तक 2500 किलोमीटर लंबा रोड बनाया गया। ये रोड, जिस पर हर थोड़े थोड़े फासले पर मेहमान खाने बनाए गए, कुएं खुदवाए गए और दरख्त लगवाए गए। इसी तरह मुल्क में जगह जगह सड़कों के किनारे मुसाफिर खाने, कुएं और दरख्त लगवाए गए ताकि ताजरों और मुसाफिरों को सहूलत हासिल हो। उन्होंने चांदी के सिक्के, रुपया को राइज किया और एक मुनसिफाना टैक्स का निजाम कायम किया, जिससे मईशत मुस्तहकम हुई। इंसाफ शेरशाह सूरी की हुक्मरानी की बुनियाद था। वो कानून की नजर में बादशाह और राया में कोई फर्क नहीं रखते थे। उनका कौल मशहूर है कि अदल के बगैर हुकूमत कब्रिस्तान के सिवा कुछ नहीं है। अदल के बगैर हुकूमत कब्रिस्तान के सिवा कुछ नहीं है। उन्होंने मजहब, नस्ल या तबके की बुनियाद पर इम्तियाज नहीं किया और हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम करने की कोशिश की। यही वजह है कि आवाम में उनकी मकबूलियत बहुत ज्यादा थी। तारीखी रवायात के मुताबिक एक मरतबा शेरशाह सूरी के खिलाफ जमीन या माली हक से मुताल्लिक एक मुकदमा दायर हुआ। दूसरे फरीक ने, जो कि आम राया में से था, मामला शहर के काजी के सामने पेश किया। काजी ने मुकदमा सुना, गवाहान तलब किए और शरई असूलों की बुनियाद पर फैसला दिया। फैसला शेरशाह के खिलाफ गया। दरबार में मौजूद बाज उमरा ने इशारा किया कि काजी को नरम फैसला करना चाहिए था, मगर काजी अपने मौक़िफ़ पर कायम रहा। शेरशाह सूरी ने न सिर्फ ये फैसला खामोशी से कबूल किया,
बल्कि काजी को मुखातब करके कहा, अगर तुम इंसाफ के बजाय मेरा लिहाज करते तो मैं तुम्हें इस मनसिब से हटा देता। अगर तुम इंसाफ के बजाय मेरा लिहाज करते तो मैं तुम्हें मनसब से हटा देता। शेरशाह ने कानून बनाया कि अगर शाहरा पर कोई कत्ल या डकैती हो तो करीब तरीन बस्ती के जिम्मेदार और मुकामी सरदार जिम्मेदार होंगे। एक मौका पर एक मुसाफिर कत्ल हुआ तो तहकीकात के बाद पूरे इलाके से तावान वसूल किया गया और मुजरम को तलाश करके सजा दी गई। उसकी फौजों से अगर किसी किसान की फसल को नुकसान हो जाता तो वो हिसाब किताब करके सरकारी खजाने से उस किसान को मुकम्मल अदायगी करता। इस सब का नतीजा ये निकला कि चंद ही बरसों में शाहराहें और मुल्क के दूर दराज इलाके हर तरह के शर और फसादात से महफूज हो गए। शेरशाह सूरी की जिंदगी का इख्तिताम भी मैदान जंग में हुआ। 1545 में किला कलंजर के मुहासरे के दौरान तोपखाना में बारूद के एक हादसे में वो शदीद जख्मी हो गए। चंद दिन तक जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला रहने के बाद वो उसी साल वफात पा गए। उनकी तदफीन उनके आबाई शहर सहसराम में की गई, जहां आज भी उनका मकबरा उनकी अजमत और शान की खामोश गवाही देता है। शेरशाह सूरी की जिंदगी इस हकीकत का वाज़ेह सबूत है कि क़यादत सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि नज़्मो ज़ब्त, इल्म, इंसाफ और अवामी खिदमत से जन्म लेती है। अगरचे उन्होंने मुख्तसर अरसा हुकूमत की, मगर उनके बनाए हुए निजाम को बाद के मुगल हुक्मरानों ने भी अपनाया। यूं शेरशाह सूरी तारीख में एक ऐसे हुक्मरान के तौर पर याद रखे जाते हैं जिसने चंद बरसों में सदियों पर असर डाल दिया। कुछ लोग तारीख में सिर्फ नाम छोड़ते हैं और कुछ लोग निजाम छोड़ते हैं। शेरशाह सूरी इन्हीं चंद लोगों में से था। वो 5 साल बादशाह रहा, मगर उसके फैसले सदियों तक चलते रहे। वो तख्त पर इसलिए नहीं बैठा कि वो वारिस था, बल्कि इसलिए बैठा कि वो अहल था। उसने तलवार से जमीन फतह की, मगर इंसाफ से दिल जीते। जब वो दुनिया से रुखसत हुआ तो कोई सोने का ताज बाकी न रहा, लेकिन सड़कें बोलती रही, सिक्के चलते रहे, कानून जिंदा रहा। और यही असल कामयाबी है कि इंसान चला जाए मगर उसका बनाया हुआ निजाम वक्त पर हुकूमत करता रहे। शेरशाह सूरी हमें यह सिखा गया कि अजमत नस्ल से नहीं, नीयत से जन्म लेती है, और जो खुद को बदल ले वो तारीख बदलने की ताकत रखता है। दोस्तों, ऐसी ही स्टोरीज के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। लव यू ऑल। ये बाप से बगावत नहीं थी, ये नाइंसाफी से इनकार था। आज से तुम फरीद खान नहीं, शेर खान हो। सिपाही वो नहीं जो सिर्फ तलवार उठाए, असल सिपाही वो है जो हुक्म, सबर और मकसद के साथ लड़े। अगर तुम इंसाफ के बजाय मेरा लिहाज करते तो मैं तुम्हें इस मनसिब से हटा देता।